Friends, welcome to the YouTube channel. We are learning chapter 1 in biology, life processes, and the first topic in that is nutrition in humans and plants. So, regarding nutrition in animals, we have already learned how the nutrition takes place, how digestion process takes place, what is the role of enzymes and various glands that helps in the digestion of food material. And we have already learned that also that after digestion or oxidation of food material, the food is converted into energy source in the form of ATP molecules and ADP molecules. So today we will learn about nutrition in plants. So let's read what is the meaning of nutrition in plants. Friends, you already know plants are autotrophic in nature, and you know the meaning of autotroph since you have learned this in your junior classes. So I will repeat in a very short sentence. Autotroph means to prepare the food by themselves. Yes, you know plants can prepare their food by themselves. They have green pigment called chlorophyll, and they prepare the food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight by intaking carbon dioxide and water. Yes, this thing you are learning from 5th class onwards. So we'll learn in detail what exactly takes place in photosynthesis, how does plant consume its energy, and how does it stores its food. So let's read out. Carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are fulfilled by the photosynthesis. This is very important line. If you can see, each and every living organism need carbon and energy. मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी बॉडी में आपको बेसिकली जो एलिमेंट मिलेगा वो होगा इन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड एनर्जी. कार्बन से ही वो एनर्जी रिलीज़ करता है. तो अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, सो वी गेट दिस कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आपको इसमें डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की लर्न होनी चाहिए बच्चों. द intake of carbon dioxide and water, these are the inorganic material that are found in the earth. So intake of carbon dioxide and water and conversion of that carbon dioxide and water into glucose in the presence of sunlight and chlorophyll with liberation of oxygen gas, that process is called as photosynthesis. Yes, that process is called as photosynthesis. इसे ही हम बोलते हैं प्लांट्स का अपना खाना बनाना. It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो इनकी stored form of energy जो होती है वो in the form of starch होती है. Yes, starch जो होती है ये stored form of energy है. और अगर हम बात कर रहे हैं जो प्लांट्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है ये यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है फॉर सर्वाइवल. ये दोनों में होती है, प्लांट्स में भी एज वेल एज इन एनिमल्स. ओके, तो मटेरियल is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. क्लोरोफिल आपको पता ही है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट सेल्स में. क्लोरोप्लास्ट सेल्स which are found in leaves as well as green plant part of plants. Yes, तो यहाँ पे ये सेल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट कर जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट का फंक्शन अगर हम जानना चाहेंगे तो फंक्शन सिंपल होता है. फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज़ टू ट्रैप सनलाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ so that it can convert it carbon dioxide and water into glucose. Yes, so main function of chlorophyll is to trap sunlight. Carbohydrates are utilizing for provide energy to the plant. We'll study how this takes place in next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. I have told store form है आपका starch
एंड इनटेक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy is derived from the food we eat is stored in the body in the form of glycogen। अगर हम बात कर रहे हैं स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस, अगर हम बात कर रहे हैं स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस तो वो होती है ग्लाइकोजन। यस, ग्लाइकोजन जो होती है ये हमारी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं यूज्ड एनर्जी की ह्यूमंस में जो एनर्जी यूज़ होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूज एनर्जी। ठीक है, ये आपको बस डिफरेंस याद रखना है और कुछ नहीं। लेट्स मूव अहेड। कैन यू सी द केमिकल रिएक्शन हियर बेटा? दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट for photosynthesis reaction. If we talk about photosynthesis, you can see 6 molecules of carbon dioxide get mixed with 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight. Chlorophyll and sunlight here act as catalyst. Catalysts are those substances which initiate any chemical reaction. Yes, it is converted into glucose and oxygen gas release होती है, देखिए, एंड वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस होती है यही हम लोग इनहेल करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो कि प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट्स अकर करते हैं। तो इसमें जो मेन 3 इवेंट्स अकर करते हैं इन्हें बोला जाता है लाइट रिएक्शन। इन्हें क्या बोला जाता है? लाइट रिएक्शन। ये इन्हें लाइट रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेक प्लेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस की तो इसमें 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो डिफरेंस यही है, डार्क रिएक्शन जो होती है वो विद इन द सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर जाके होती है, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। जहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय NADPH मॉलिक्यूल्स एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू ATP मॉलिक्यूल्स। यस, ये डिटेल प्रोसीजर आपको 11th क्लास में है बेटा, लेकिन आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ। इन लाइट रिएक्शन सिंपल थिंग इज दैट सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर एंड मिनरल्स आर टेक रूट्स, वाटर मिनरल्स and carbon dioxide is taken and it is converted into glucose. So what is the first step in light reaction? If I have to study, then it would be absorption of light energy by chlorophyll. Yes, a particular wavelength of sunlight is absorbed by the leaves of particular plants. Yes, हर प्लांट की लीव्स का अपना एक स्ट्रक्चर और शेप होता है और इसके जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेता है ताकि वो ये हीट को या इस जो क्लोरोफिल से जो एब्जॉर्ब हीट या सनलाइट एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करने में इनटू ग्लूकोज। सेकेंड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हाँ, ये जो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट की एनर्जी आई क्लोरोफिल में, अब ये क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट किस में करेगा? केमिकल एनर्जी, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन फिर ये रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स का, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट्स। ये रिड्यूस कर दिया उसने। अब क्या होता है डार्क रिएक्शन में बेटा? यही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर NADPH मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इनके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करते हैं ATP मॉलिक्यूल्स। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो ये एवरी टाइम नीडेड हो, नहीं, टाइम टू टाइम जब प्लांट के सेल्स को रिक्वायरमेंट है तब ये रिलीज़ करता है। This step did not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अगर हम बात कर रहे हैं ये लाइट रिएक्शन की या 3 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन की, तो क्या ये कंसेक्यूटिवली होते हैं? नो, कंसेक्यूटिवली नहीं होते बच्चों। ये जो रिएक्शंस के स्टेप्स होते हैं कुछ प्लांट्स में इनमें वेरिएशन दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कैक्टस की, जो कि डेजर्ट प्लांट है, यहाँ पे क्या होता है
ये जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी कि एक रॉ प्रोडक्ट बना कर रखते हैं, जो कि फिर डे टाइम में क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल के साथ में एक्ट करके वो कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट करता है। अगर हम बात कर रहे हैं लीफ के एक सेक्शन की, तो यहाँ पे आप देखो बेटे, जब हम लीफ का एक सेक्शन देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि जाइलम सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। आपको जाइलम एंड फ्लोएम का रोल ऑलरेडी नोन है कि जाइलम आर द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड फ्लोएम आर द फूड कंडक्टिंग टिश्यूज विच हेल्प्स इन टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर as well as to reach to send the carbohydrate to the required part of plant. Now if we are going again for more thing, see, one activity has been given. Why do plants require chlorophyll, carbon dioxide, sunlight, water? Why they require these 4 elements necessary for photosynthesis process? Very simple activity. If any one of the element is absent, then photosynthesis will not take place and the acquired food will not get conducted and will not be successful to get the processed food by the plants. So these 4 elements are essential for any plant to cook its food. So if I am talking about chlorophyll, तो इसमें बेटा प्रैक्टिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. What reagent is used to deactivate chlorophyll pigment from a leaf? तो वो जो reagent होता है वो होता है एल्कोहल. यस, अगर हम लीफ को पानी में बॉईल करें, वाटर में बॉईल करें एंड उसके बाद में डिप करें एल्कोहल में, तो बेटा वो नॉन ग्रीन इन कलर हो जाएगी या वो अपना ग्रीन पिगमेंट को लूज़ कर देगी, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट को लूज़ कर देगी. तो ये एक रीज़न होता है कि लीफ को बॉईल करने के बाद में अल्कोहल में क्यों डिप किया जाता है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रीन लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन वाटर इज डिप्ड इनटू अल्कोहल, तो टू डीकलराइज और व्हाट वी कैन से, और टू रिमूव क्लोरोफिल पिगमेंट, टू रिमूव क्लोरोफिल. अगर आप क्लोरोफिल रिमूव कर देंगे तो आपको एक्वायर्ड जो भी रिजल्ट्स चाहिए वो आपको पॉजिटिवली नहीं मिलेंगे. ऑब्वियसली फिर इससे प्रूव हो जाएगा कि क्लोरोफिल की इतना इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. आगे इसमें हम अगर बात करते हैं टू चेक कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीफ होती है उसको कॉक्ड बॉटल में जिसके अंदर की क्या होता है KOH सॉल्यूशन. यस, KOH सॉल्यूशन. इसमें हाफ पार्ट ऑफ लीफ को हम डिप करते हैं और ये क्या होता है KOH सॉल्यूशन होता है इसके अंदर. तो वाई KOH सॉल्यूशन इज टेकन एंड लीफ इज इमर्स्ड इन कॉक फिटेड टेस्ट ट्यूब टू चेक कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें ये कि इसका रीज़न है KOH सॉल्यूशन की एक खासियत होती है. KOH जो होता है इट्स एन रिएजेंट विच एब्जॉर्ब्स, KOH इज अ सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब्स carbon dioxides, which absorb carbon dioxide. If there is little bit carbon dioxide present in the leaf, it will absorb it and then you can see the results. We'll learn about the activities in detail in next video. Now let's move ahead. If I have to talk about the main cell which takes place, which helps in the process of photosynthesis as well as transpiration, then those cells are called as stomata. Yes, stomatas are tiny pores or holes that are present on the leaf in the epidermal layer. ये आपने टिश्यूज़ में पढ़ा होगा बेटा. Yes, तो ये स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है? सिंपल फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज. इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज. अगर हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज की, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट टेक्स इन व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, whereas
इन रेस्पिरेशन इट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं। ये लीव्स की नीचे की सतह में सेल्स होते हैं बेटा, जो कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इनमें गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्वलन अप हो जाते हैं जब एज सुन एज द एयर एंटर्स द लीफ। ये ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करते हैं। अगर 2 फंक्शंस पूछा जाए तो 1 इज़ गैशियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज़ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी कि अगर लीफ प्लांट में एक्सेस वाटर है तो ये एक्सेस वाटर जो रिमूव होता है प्लांट से, इट इज़ रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन बाय द स्टोमेटा सेल्स। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम लीफ माउंट लेते हैं ऑन स्लाइड, लीफ माउंट लिया जाता है ऑन स्लाइड, वाई a drop of water is added there, why a drop of water is added there। तो बेसिकली रीज़न ये है बेटा, अगर ये हमें स्टोमेटा सेल्स को देखना है माइक्रोस्कोप के अंडर तो बहुत नेसेसरी है कि वी आर एडिंग वाटर टू इट, बिकॉज बाय एडिशन ऑफ वाटर व्हाट हैपन्स, द गार्ड सेल्स गेट ओपन, द गार्ड सेल्स गेट ओपन and they become turgid and that's why it's become easy to see them under microscope। they become turgid मतलब पानी भर जाता है इनके गार्ड सेल्स के अंदर, और इसकी वजह से ये फूले हुए हमें ओपनिंग ईजिली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्लियरली दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपको मेन याद रखना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. Since large amount of water can be lost through the stomata, the plant closes the pore where it does not need carbon dioxide for photosynthesis। ये excess water loss को भी ही रोकते हैं जब हमारे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये बात हो रही है रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं होती है और प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। दिन में भी रेस्पिरेशन करते हैं बट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी स्लो, क्योंकि दिन में वो मैक्सिमम जो प्रोसेस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस का करते हैं। तो ये जो स्टोमेटा सेल्स है ये क्लोज हो जाते हैं ताकि बॉडी प्लांट बॉडी से एक्सेस वाटर लूज ना हो। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये गार्ड सेल्स का फंक्शन होता है जो कि टेक प्लेस करता है थ्रू स्टोमेटा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक फोटोसिंथेसिस।